کے فیض حمید سے متعلق بیان پر رد عمل۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بانی چیئرمین ہوتا کون ہے یہ بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں۔ اگر بانی چیئرمین کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا، ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے۔ اس پر مزید ڈیٹیلز کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہم سے شیئر کریں گے، بتائیے گا جاوید۔ باخبر سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید سے متعلق بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی چیئرمین ہوتا کون ہے یہ بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں۔ جاوید بلوچ سن پا رہے ہیں تو خبر کی ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی دیکھیں، جو آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے میڈیا سے بات کی ہے ڈیورنگ ہیئرنگ ڈیرہ جیل میں، اور انہوں نے اوپن کورٹ ٹرائل کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی، تو اس پہ سیکورٹی ذرائع کا جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ اور اس میں سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر بانی چیئرمین تحریک انصاف کا اس معاملے میں کوئی ٹرائل ہوا تو وہ بھی جو ہے وہ اوپن ہی ہوگا، وہ تسلی رکھیں، اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کرواتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس نے کرنا ہے، ان کا یہ ڈومین نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسی کوئی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں یا کوئی ڈیمانڈ کریں۔ تو اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا ہے سیکورٹی ذرائع کی طرف سے، چونکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہر جب بھی ڈیلا جیل میں کوئی سماعت ہوتی ہے تو وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کو، اور جو ہے وہ سسٹم کے خلاف جو ہے بات کی جاتی ہے۔ تو اس پہ آج پھر بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے سیکورٹی ذرائع نے، چونکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یہ ایک بیانیہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا، اور جنرل فیض کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ہے وہ آج جب انہوں نے اوپن کورٹ ٹرائل کی بات کی تو اس پہ سیکورٹی ذرائع کا جو ہے یہ انتہائی سخت رد عمل کا اظہار انہوں نے کیا کہ ان کا کوئی جو ہے وہ کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ ٹرائل اوپن ہوگا یا نہیں۔ جاوید بلوچ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ فیض حمید کو حراست میں لیا گیا اور یہ تمام تر معاملہ سامنے آیا تو تمام حکومتی اور اپوزیشن ادارے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو فوج کے اندر احتساب کا عمل ہے وہ کافی شفاف ہے، ان بائزڈ ہے۔ اس کے بعد یہ بیان سامنے آیا کہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے، جبکہ یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ اس آفس میں رہ چکے ہیں پرائم منسٹر کے آفس میں، ان کو یہ معلوم ہے کہ جو فوج کا ادارہ ہے وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور وہ اپنی تمام تر معاملات کو خفیہ رکھتے ہیں، اور جو بھی ٹرائل ہوگا وہ ان کا ان بائزڈ ہوگا۔ دیکھیں، فوج کا ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اور جو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ فوج نے اگر ہم دیکھیں تو سانحہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کتنے لوگوں کو گھر جانا پڑا، انکلوڈنگ جو ہے وہ ایک لیفٹنٹ جنرل سمیت کئی جو افسر تھے، ان کو اپنے فرائض جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام نہ دینے پر انہیں فارغ کیا گیا۔ تو اس میں اس وقت تو کوئی نہیں بولا کہ انہیں کیوں فارغ کیا گیا یا کیوں اس میں وہ کیا گیا ہے، جبکہ جو فوج کے اندر خود حسابی عمل ہے وہ ڈی جی آئی پی آر نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ وہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے یا اس کا کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید بلوچ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، بانی پی ٹی آئی کی دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتناعی ختم کر دیا ہے۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کی بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو فراہم کر دی ہے کاپی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، بانی پی ٹی آئی کے دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتناعی ختم کر دیا۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کی کاپی بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو فراہم کر دی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے سماعت کی ہے۔
बात करेंगे कराची में अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने के केस की। मुलजिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा की दिमागी हालत दुरुस्त करार दे दी गई है। मुलजिमा के वर्सा दिमागी हालत खराब होने का कोई रिकॉर्ड पेश ना कर सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा के 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। मुलजिमा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस न होने के इंकशाफ के बाद मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा 322 का इजाफा भी कर दिया गया है। वाकये की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। जुनेद शाह इस तमाम तर मामले पर रिपोर्ट करेंगे। मुकामी अदालत में कारसाज हादसा केस की समाअत मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत में लाया गया। अदालत ने पुलिस की 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा नताशा को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई के वकील का कहना था कि पता लगाया जाए खातून ने किस किस्म का नशा कर रखा था कि 2 अफराद की जान ले ली। मेडिकल रिपोर्ट में यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि या तो वो अल्कोहलिक है या वो साइकोपैथ है। साइकोपैथ के केस के अंदर 322 के साथ 114 की भी हम दरखास्त करेंगे कि 114 भी ऐड करें और हम करवा के छोड़ेंगे 114 कि गाड़ी का जो मालिक है उस मालिक ने गाड़ी क्यों दी अगर लड़की की दिमागी तवज्जुह ठीक नहीं था तो ऐसी औरत को गाड़ी देना और ऐसे चला के मासूम लोगों का कत्ल करना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनकी जब ये बेल लगाएंगे तो बेल भी हम रिजेक्ट करवाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। इससे कबल मुलजिमा नताशा के अहले खाना उसके जहनी मरीज होने से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड पेश न कर सके। जिला अस्पताल नफ्सियाती वार्ड के सरबराह ने मुलजिमा की दिमागी हालत ठीक करार देते हुए डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर चुन्नी लाल के मुताबिक मुलजिमा की हालत ठीक है और खुदकुशी करने के इम्कानात कम हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिमा नताशा के पास मुकामी ड्राइविंग लाइसेंस न होने के इंकशाफ के बाद मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा 322 का इजाफा कर दिया है। इससे कबल मुकदमे में कत्ल खता की दफा 320 शामिल की गई थी। वाक़े की मजीद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें सफेद रंग की लैंड क्रूजर को इंतहाई तेज रफ्तारी से जाते देखा जा सकता है। कैमरामैन शामिर के साथ जुनेद शाह, न्यू न्यूज कराची। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में कार से बच्चे की लाश बरामद हुई। शनाख्त 3 साला उस्मान के नाम से कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर बच्चे खेलते हुए गाड़ी की डिग्गी में बंद हो गए। जिंदा मिलने वाले की हालत बेहतर होते ही बयान कलम बंद करेंगे। तफसीलात जानेंगे उबैद शाह से। उबैद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक कार की डग्गी से बच्चे की लाश बरामद हुई थी। मुतवफ़्फ़ी बच्चे की शनाख्त 3 साल उस्मान के नाम से की गई। बच्चे की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए, जबकि जो बच्चा बेहोशी की हालत में पाया गया था उसको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक तौहीद मोहल्ले से बच्चे की ये वाक़या था। 3 साल उस्मान की लाश कार की डग्गी से बरामद हुई। एसएसपी केमाड़ी के कहना है कि एक बच्चे की लाश मिली जबकि एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाला गया। ताहम उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उसकी हालत बेहतर होते ही वाक़या जो है वो कलमबंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और जमात इस्लामी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। मुतवफ़्फ़ी बच्चे की शनाख्त 3 साल उस्मान के नाम से की गई। बच्चे की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए, जबकि जो बच्चा बेहोशी की हालत में पाया गया था उसको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक तौहीद मोहल्ले से बच्चे की ये वाक़या था। 3 साल उस्मान की लाश कार की डग्गी से बरामद हुई। एसएसपी केमाड़ी के कहना है कि एक बच्चे की लाश मिली जबकि एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाला गया। ताहम उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उसकी हालत बेहतर होते ही वाक़या जो है वो कलमबंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और जमात इस्लामी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर नून लीग अपडेट कर दिया है। पीटीआई के चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए हैं।
कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून अपडेट कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मौजूद है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह अपडेट किया गया है। महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और असफंद यार वली खान का नाम ताहाल बतौर सदर अवामी नेशनल पार्टी मौजूद है। पाक सरजमीन पार्टी भी रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में शामिल है। पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी सूबा अपनी घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। जमीन अपनी हो तो हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। शहरी इलाकों में 5 मरला जबकि देही इलाकों में 10 मरला घर के लिए कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 सालों में 14,000 माहाना किस्त पर वापस करना होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर फील्ड में बाकी सूबों से लीड कर रहा है। कम अज कम 16 घंटे रोज काम करती हूँ। जो शहरी इलाकों में 5 मरले और देही इलाकों में 10 मरला तक प्लॉट के मालिक हैं, वो 15 लाख तक कर्जा लेने की दरख्वास्त पोर्टल पर दे सकते हैं। बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के बाद पंजाब हुकूमत का एक और अवाम दोस्त इकदाम, अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि जमीन अपनी हो तो हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। शहरी इलाकों में 5 मरला जबकि देही इलाकों में 10 के लिए कर्ज 7 साल में 14,000 माहाना किस्त पर वापस करना होगा। कर्ज पर कोई टैक्स या कोई खुफिया चार्जेस नहीं है। अपना घर अपनी छत मंसूबे से ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। इस स्कीम का अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी को था तो वो साहब। अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की जमीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले की जमीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी जो अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपए, और अगर उससे कम है तो उसकी माहाना जो किस्त है वो उससे कम हो। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि 14,000 रुपए से एक ज्यादा पैसा आपको महीने में ना देना पड़े, क्योंकि मुझे इस चीज का एहसास है। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है। नवाज ने मजीद कहा कि पंजाब की तरक्की को देखकर लोगों की दौड़ें लग गई हैं। पंजाब हर फील्ड में बाकी सूबों से लीड कर रहा है। कम रोज 16 घंटे काम करती हूँ, न खुद आराम से बैठती हूँ और न ही आराम करने देती हूँ। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की हुई है पंजाब को देख के हर रोज माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। मैं घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप, और उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि स्कीम्स हमने बनाई हैं, अब उन सबको वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। ऐसा नहीं होता कि हर रोज एक नई स्कीम आती है और पिछली जो है वो पीछे रह जाती है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि कहीं भी, कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। वजीर आला पंजाब का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बहुत जल्द लॉन्च करने का अज़म। कहा कि सोलर मंसूबे से बिजली के बिलों का मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत गरीबों और मुस्तहिक अफराद को घर बना कर देगी।